Yes, hello everyone. In last topics we have discussed torque in a coils when placed in a uniform magnetic fields. So this is the earlier case. In this case we have this is a coil and placed in a uniform magnetic field. This is the north pole of the magnets and this is the south pole of the magnets. Its direction is from north to south, north to south. So here the plane of this plane of the coil is lying in uh, the magnetic field lies I mean that the magnetic field lies in the plane of the coils. So in that case we have the direction of the magnetic field is north to from north to south. This is the direction of the magnetic fields B. And uh, and the dipole moment, we know that dipole moment I dipole moment magnetic dipole moment is equal to I into a the area vectors. Now we have to find out the direction of the area vectors by the right hand rules. If the direction of the current is here clockwise directions, if you turns your fingers in the clockwise direction, your thumb represent the direction of the area vector. Here the area vector is inward normals, so that's why the dipole moment also the direction is inward normal. So for the inward normals we represent the direction of m is this one. So here the angle between m and b is a 90-degree, because the dipole moment, the moment is inward normal to the plane of the coil, and the magnetic fields lies in the plane of this white boards. So that's why this is the simple case. We have proved this torque is equal to m cross b here in last class. M cross b, m cross b here, length of this one, its length is a bc length is a and its length is b. So our area vector is area is small a cross b, and angle between m or b is m or b. Since m is normal to magnetic fields b, therefore angle between them is 90-degree. So our magnitude here becomes mb. MB sine 90 degrees. Sine 90 degrees is equal to 1, and M has the value, yeah, simply its value become M into B, and M has the value I into A. So therefore M is equal to IAB. If I place this value here, the value becomes I, A, B and B. So this is the magnitude of the torque. This is the magnitude of the torque. Now if the coil of the coil not in the plane of the coil is not in the uniform direction of the magnetic fields. Suppose the coil is turning from the magnetic fields at some angles. In that case, what will be the torque? So now we have to find out the torque. In that, this is the second figures. So here this is the coil. It is make some angles from the direction of the magnetic field. I have rotating these coils in and if I look from BC side, if I look from the BC side, it is rotating clockwise direction. If I look from the AD side, the coil is rotating anti-clockwise direction. So we have to find out the torque in this case. So this is the simple structures of the coil moving in a magnetic fields. Let us explain in more details. This is a rectangular loop, and it's here is a split. These are two half ring split. These are the split ring, and this connected with this split ring. Left half connected with the end of this coil, and right half is connected with the end of this one. And these are the brushes. So here these are the brushes. Just the half split ring is just touching this brush. So this is the brush. They are very soft, ये बहुत soft होते हैं. And ये external circuit of the coil. यहाँ से जब when the current go this one, first case में जब current इस direction में जाता है, ठीक है, look here. So now here यहाँ पे एक torque is creating in the arm of AB. So that torque is find out. We have आई ए बी क्रॉस, ये मेरे पास फॉर्मूला होता था आई ए बी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी. तो यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बी की डायरेक्शन ऐसे है, करंट मेरे पास ए टू बी जा रहा है. तो यहाँ पे इसमें जो टॉर्क लगेगा, जो क्रिएशन होगा,
मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे क्रिएशन ऑन द आर्म ऑफ ए बी, तो यहाँ पे अंदर की तरफ लग रहा है, इस साइड में क्या लग, साइड ऑफ दिस वन लग रहा है, दिस इज सपोज F1 वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड से लगेगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन द CD आर्म एक्टिंग अपवर्ड्स, तो अपवर्ड से लगता है, तो मेरे पास अपवर्ड से इफ आई शोन दिस वन, इसको मैं F2 से दिखाते हैं बिकॉज तो ये मेरे पास दो फोर्सेस हैं एंड दे आर एंटी पैरेलल, दोनों फोर्सेस क्या मेरे पास, एक अंदर की तरफ, एक डाउनवर्ड्स मेरे पास है, डाउनवर्ड्स है, दो मेकिंग ए टॉक, ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, टॉक टॉक क्रिएशन कर रहा है, जिसका वैल्यू हमने यहाँ पे देखा, टॉक बराबर M क्रॉस B, सो M क्रॉस B दे आर क्रिएटिंग ए टॉक। इन लास्ट क्लास, इन लास्ट पार्ट 1 में हमने इसका टॉक, हाउ टू फाइंड आउट द टॉक किया था, एंड BC में भी क्या लगता है, फोर्स लगता है, एंड BC में जब हमारे पास, हाँ यस, BC में मेरे पास IL क्रॉस B कोई फोर्सेस नहीं लगेगा, बिकॉज करंट की BC एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आर द सेम डायरेक्शन। उस केस में क्या हो जाए, AB और B के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पे तो BC आर्म्स पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिमिलरली AD आर्म्स पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज मेरे पास आर्म की जो डायरेक्शन है इधर की तरफ, इफ आई फाइंड आउट दिस वंस, तो फोर्स बराबर इस वाले केस में अगर F2 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, F2 बराबर हो जाएगा I एंड DA साइड मेरे पास DA क्रॉस B, तो यहाँ पे DA गोइंग अलोंग दिस साइड एंड B अलोंग दिस साइड, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री, इसलिए वी नो दैट इन क्रॉस प्रोडक्ट देयर इज DAB sin थीटा, तो sin 180 कितना होगा, मेरे पास 0 हो गया, इस केस पर क्या होगा, फोर्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए AD आर्म्स में कोई फोर्स नहीं लगेगा, BC आर्म्स में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ओनली द फोर्सेस विल एक्ट ऑन AB आर्म्स एंड CD आर्म्स, एंड उनके द्वारा जो टॉर्क क्रिएट होगा इट्स वैल्यू विल बी IAB। तो ये वाला वेरी सिंपल केस था। नाउ इन दिस केस हमारे पास क्या है कि प्लेन ऑफ द लूप, प्लेन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप इज लाइज नॉट इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है, तो इस एंगल्स बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट दिस वंस, बिकॉज दिस इज द 3 डायमेंशनल पिक्चर, तो ये थोड़ा सा मैंने आई हैव लिफ्टेड, तो ये मेरे पास जैसे अगर इस वाले केस में मेरे पास अगर ये मैग्नेटिक, मेरे पास दिस इज अ लूप, ये रेक्टेंगुलर लूप है, लाइज, तो व्हाइट बोर्ड पे लाई कर रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हियर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मेरे पास है, इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, बट इफ आई रोटेटिंग दिस, अगर मैं इसको रोटेट करा दूं, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो इस वाले केस में हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक टॉर्क ऑन दिस करंट लूप, करंट कैरिंग मैग्नेटिक लूप, इस लूप पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम क्रिएट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट दिस वन। तो इस वाले केस में एग्जैक्ट हमारे पास, मैंने इसको थोड़ा रोटेशन किया हुआ है, दिस इज लाइक दिस सिचुएशन, ये मेरे पास ऐसी टाइप की सिचुएशन है, तो इसमें हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने हियर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम A to D, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, तो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, तो दिस इज द एंगल्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरी सिंपल सा केस ले लेंगे, द एंगल्स बिटवीन बी के डायरेक्शन मेरे पास, यस, बी का डायरेक्शन हमेशा लाइज इन दिस प्लेन, व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे लाई कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इसका जो नॉर्मल है मेरे पास, द कॉइल का जो दिस इज द वाइट, ये ग्रीन जो मेरे पास एनवलप है, तो इसका जो नॉर्मल्स है मैं निकालना, सपोज थीटा है द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ दिस एनवलप एंड विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है मेरे पास, सपोज थीटा मान लेते हैं, सपोज इसका जो नॉर्मल है मेरे पास लाइक दिस हो जाएगा, इसका नॉर्मल लाइक ये अंदर की तरफ है, तो हमें क्या करना है, इसका नॉर्मल दिस वन, बिकॉज इसमें करंट जा रहा है मेरे पास, ऐसे करंट पास हो रहा है, तो इसका नॉर्मल की डायरेक्शन हम ले लेंगे, ठीक है, बाय द राइट हैंड रूल्स, इफ द करंट गोइंग हियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका नॉर्मल की डायरेक्शन अंदर की तरफ ले लेते हैं, तो अंदर की तरफ, सपोज नाउ दिस इज टर्निंग सम एंगल्स, कुछ एंगल थीटा एंगल से टर्न कर रहा है, तो इसका नॉर्मल भी क्या कर जाएगा, अभी नॉर्मल अंदर की तरफ अगर ये टर्न करेंगे तो नॉर्मल इज ऑल्सो टर्न, ये नॉर्मल भी है मेरे पास टर्न हो जाएगा, सो यहाँ पे मेरे पास क्या ये ऐसे टर्न हो गया, तो नॉर्मल भी टर्न हो जाएगा, सपोज नॉर्मल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा, तो दिस इज द सिचुएशन, तो यहाँ पे कुछ ऐसा
ये मेरे पास लूप है, थोड़ा सा टर्न हो गया, तो लेट अस सपोज इट मेक्स नॉर्मल ऑफ दिस, इसका जो नॉर्मल है मेरे पास अंदर की तरफ है, नॉर्मल मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हाउ टू फाइंड द टॉर्क? सो सिंस यहाँ पे क्या है मेरे पास, जब हम इस कॉइल को टर्न करते हैं, टॉयल को टर्न करते हैं, तो दिस इज अ सी डी, ये मेरे पास सी डी इंड है, तो सी डी इन ऑलवेज क्या होगा मेरे पास, सी डी इन ऑलवेज, सी डी इंड पे मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑलवेज 90 डिग्री बनाएगा। तो इस वाले में 90 डिग्री बनाएगा, नहीं यस 90 डिग्री बनाएगा लाइकली। ए बी आर्म्स में भी हमारे पास, ए बी आर्म्स सिंपली क्या है, ये हमने रोटेट करा दिया, इसका एक्सिस और रोटेशन बीच में, दिस इज द एक्सिस और रोटेशन ऑफ दिस कॉइल। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी और सी डी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल ऑलवेज क्या होगा, 90 होगा, बट ओनली द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ दिस लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल्स होगा। तो हमारे केस में क्या कि इस आर्म्स में फोर्स लगेगा, इस आर्म्स में भी फोर्स लगेगा बाय द लॉरेंज फोर्सेस। तो ये मेरे पास अगर हम फोर्स निकालेंगे यहाँ पे, तो वी विल यूज हियर आई, लाइक अगर मैं ए बी आर्म्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी क्रॉस, सपोज दिस द फोर्स ऑफ F1, ए बी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और बी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 रहेगा, 90 रहेगा। तो नाउ इट्स वैल्यू बिकम्स इन मैग्नीट्यूड F1 इज इक्वल टू आई ए बी की जो लेंथ मेरे पास है बी था, आई बी एंड बी, तो साइन 90 मेरे पास हो जाएगा, दिस द वैल्यू ऑफ दिस वन, साइन 90 आई बी बी। तो ये मेरे पास वैल्यू हो गया, इसमें फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, बट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास, इसमें नॉर्मल होगी बट इनवर्ड्स हो जाएगी। सिमिलरली फोर्स ऑन सी डी, लेट अस सपोज फोर्स ऑन सी डी हम दिखाते हैं, इसको F2 से अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, नाउ इट बिकम्स आई करंट गोइंग फ्रॉम सी टू डी, इसमें सी से डी जा रहा है मेरे पास, का लंबाई अगेन क्या है मेरे पास, इट्स लेंथ इज अगेन बी द लेंथ ऑफ दिस वन। तो हियर CD cross magnetic fields. Now CD cross I. Now in magnetic, this is in vector format. Now in the its magnitude will be F2 is equal to I CD की जो लंबाई मेरे पास है B, I B and B sin 90 is equal to 1। तो ये मेरे पास आ गया, इट्स वैल्यू बिकम दिस वन I B B। तो ये मेरे पास है। So now these two forces are, this is the loop of the magnetic fields, and तो here इसमें करंट गोइंग अलोंग दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, या मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म ए बी इज, ठीक है, अंदर की तरफ लाइक दिस वन। तो ये मेरे पास हो जाएगा, अंदर की तरफ फोर्स जाएगा, एंड इसमें जो लगेगा मेरे पास, इसमें फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, सिंस दे आर एंटी पैरेलल, दीज आर द एंटी पैरेलल एंड आर नॉट इन द सेम प्लेन, अलग अलग प्लेन पे है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ लग रहा है, बट इसका प्लेन या यानी कि जो फोर्स का जो प्लेन है या फोर्स जो अंदर की तरफ है, ये ठीक है, दे आर नॉट द कॉलिनियर, दीज टू फोर्स, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है अंदर की तरफ, दूसरा फोर्स इस आर्म से पे लग रहा है, दे आर एंटी पैरेलल, दोनों फोर्सेज मेरे पास एंटी पैरेलल है, तो दे विल क्रिएट ए टॉर्क, ये दोनों क्रिएट टॉर्क करेंगे। बट इन द फोर्स ऑफ BC में भी यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बिकॉज अर्लियर केस में मेरे पास BC आर्म्स एंड AD आर्म्स पे देयर इज नो फोर्सेज, कोई भी फोर्सेज नहीं था, बट BC आर्म्स एंड AD आर्म्स से मेरे पास यहाँ पे फोर्स लगेगा, एंड दिस फोर्स विल बी, ये फोर्स क्या होगा, कॉलिनियर होगा, बट ठीक है, एंड विल कैंसल ईच अदर। अब जैसे इसमें BC में करंट गोज फ्रॉम B to C, B से C की तरफ जा रहा है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से अगर ये कुछ एंगल बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर जो फोर्स की जो डायरेक्शन हो जाएगी मेरे पास अंदर ऊपर के अपवर्ड्स हो जाएगी, एंड इसमें फोर्स की डायरेक्शन अगर राइट हैंड ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे हम लोग, ठीक है, D2A करंट गोइंग फ्रॉम D2A इनटू B, तो DA एंड B के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल, कुछ यहाँ पे एंगल्स है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इन द प्लेन, या जो भी इस प्लेन पे लाई यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा टर्निंग कर रहा है मेरे पास। सो हियर तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है कुछ ऐसे होगी मेरे पास, ये है,
तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस वन। तो ये नॉर्थ टू दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले केस पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस वन एडी, एडी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल होगा, इसलिए इसमें जो फोर्स लगेगा, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, अगर लगाऊं तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड लगेगा। सेम वे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है मेरे पास अलोंग दिस वन। तो यहाँ पे भी क्या बीसी आर्म्स क्या बना रहा है, दिस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बीसी आर्म्स इससे मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल बना रहा है। तो इस आर्म्स पे भी फोर्स लगेगा, ये ऊपर की तरफ लगेगा, इस आर्म डी में लगेगा डाउनवर्ड। तो बिकॉज द फोर्सेज विल एक्ट एट द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बीसी आर्म्स, एंड ये हो गया ऊपर की तरफ हो गया अलोंग द एक्सिस, एंड डी आर्म पे लगेगा अलोंग द एक्सिस बट डाउनवर्ड लगेगा, इसको बीच में बेस से जाएगा डाउनवर्ड। दे आर कॉलिनियर, एक ही लाइन में लाइक कर रहे हैं, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए बीसी में और बीसी और डी आर्म्स में जब फोर्स लगता है इट विल नॉट क्रिएट एनी टॉर्क। तो इस तरह से हमारे पास जो टॉर्क क्रिएट करेगा इट विल बी द फोर्स ऑन सी डी एंड फोर्स ऑन ए बी आर्म, ए बी आर्म से पे जो फोर्सेज लग रहे हैं दे विल क्रिएट देयर टॉर्क। तो लेट अस शो दिस फिगर in this white boards. So now this is the case, north south direction है, हमने क्या कर दिया, this ABCD the loop मैग्नेटिक फील्ड्स पर हल्का सा क्या कर दिया, हमने रोटेट करा दिया, हल्का सा रोटेट करा दिया इन सिचुएशन। व्हाट विल बी द टॉर्क ऑन दिस वन, एज ऑलरेडी आई सेड दैट DA और BC आर्म्स पे जो फोर्स लगेगा दिस विल क्या लगेगा, तो इसमें जो इस AD आर्म में जो फोर्स डाउनवर्ड लग जाएगा इट विल कैंसिल आउट F3, इस आर्म में जो फोर्स लगेगा अपवर्ड लग जाएगा, इस आर्म में फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा F3 एंड F4, ठीक है। सपोज F3 एंड F4 दे आर इक्वल, दोनों क्या मेरे पास F3 और F4 एंटी पैरेलल से एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ AD एंड BC, यानी बीचों बीच से जा रहा है एंड अलोंग द एक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस वाले केस में F3 इज इक्वल टू मेरे पास हो गया माइनस F4, तो ये क्या हो गया मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। ओनली जो हमारे पास फोर्स बचा ऑन द आर्म्स AB और CD आर्म्स में फोर्स बचा हुआ है, ठीक है। तो AB आर्म्स में फोर्स लगा हुआ है AB एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग अंदर की तरफ लगा हुआ है, यहाँ पे CD आर्म्स पे जो फोर्स लगा हुआ है इट विल बी F2 बाहर की तरफ लगा हुआ है। तो इफ आई अगर मैं क्या करूं AD साइड से, इफ आई व्यू द पिक्चर फ्रॉम द AD साइड, मेरे पास इस टाइप का पिक्चर बनेगा। तो यानी कि मेरे पास ये इफ आई लुक फ्रॉम द डाउनवर्ड से, ठीक है, अगर AD मेरे पास ये AD साइड है, AD साइड से अगर देखता हूं तो मेरे पास पिक्चर कुछ ऐसे दिखेगा लाइक दिस वन। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास नॉर्थ टू साउथ चला गया है एंड ये मेरे पास करंट इसमें जा रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इफ आई फाइंड आउट दैट नॉर्मल, इसका जो नॉर्मल हमारे पास है उसी नॉर्मल की डायरेक्शन में हमारे पास क्या लगेगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी अंदर की तरफ, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला फॉर द डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है M बराबर हम नॉर्मली करते हैं I इंटू A वट एवर द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है। तो हमारे लिए कन्वीनियंट है अगर हमारे पास एरिया वेक्टर अंदर की तरह अगर मैं लेता हूं, सो हियर करंट मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, डायपोल मूवमेंट अंदर की तरफ है, तो दैट्स वाई ये मेरे पास अंदर की तरफ है। इफ आई लुक फ्रॉम द AD साइड से मैं इसको देख रहा हूं तो मेरा पिक्चर ये आ जाता है। तो हियर मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ टू साउथ, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड इसका जो एरिया वेक्टर है यानी डायपोल मोमेंट और एरिया वेक्टर विल हैव द सेम डायरेक्शंस। सो अंदर की तरफ है, अंदर के लिए मैंने ये दिखाया, तो ये हल्का सा टर्न हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास AD, अगर इसको मैं A और D से दिखा दूं इसको, तो ये A और D का मतलब है ये वाला साइड। तो ये वाला साइड थोड़ा सा हमारे पास टर्निंग कर गया। सो सिंस M और AD के बीच में, यानी कि आपके पास प्लेन एंड M के बीच में जो होगा एंगल 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली दिस एंगल्स विल बी, ये जो एंगल मेरे पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, ये भी मेरे पास 90 माइनस थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट हो गया। यहाँ पे ये एंगल बना रहा है 90, ये एंगल मेरे पास हो गया थीटा। सो मेरे पास दिस द पॉइंट, ये मेरा एक्सिस और रोटेशन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी एक्सिस ये वाला पॉइंट मेरे पास कहीं यहाँ पे आएगा। तो मेरे पास क्या है, these are the two talks, these talks
अब ये इसमें फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये F1 F2 दोनों फोर्सेस क्या है मेरे पास, दे आर पैरेलल, दीज आर द पैरेलल फोर्सेज हैं, F1 पैरेलल टू F2, बट इन एंटी पैरेलल हम इसको ऐसे लिखेंगे F1 बराबर माइनस F2, पैरेलल तो एंटी, दे आर एंटी पैरेलल, वी से दैट दीज आर द एंटी पैरेलल, इसलिए बाहर से मैंने माइनस लगा दिया, तो माइनस लगा दिया तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बोथ आर कंट्रीब्यूशन द टॉर्क, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है इसको इस डायरेक्शन रोटेशन कराएगा, इट विल रोटेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, इसलिए दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या जाएगा, विल बी एट इट। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट दिस वंस, तो मेरे पास हो जाएगा, तो दिस इज एम एंड दिस इज द एंड पॉइंट ले लेते हैं, दिस राइट ट्रायंगल्स मेरे पास है, पहले इसका टॉक निकाल लेते हैं, टोटल टॉक कितना हो जाएगा मेरे पास, ना टोटल टॉक हो जाएगा, टोटल टॉक टाउ से हम दिखा देते हैं, तो F1 के लिए मेरे पास, ये मेरे पास फोर्स F1 है, F1 यानी कि फोर्स ऑन द, F1 का मतलब है कि F1 इज द फोर्सेस ऑन द आर्म AB आर्म से पे मेरे पास फोर्स लगा हुआ है, एंड सिमिलरली F2 जो फोर्स है मेरे पास, इट इज एक्टिंग ऑन द आर्म ऑफ CD, सो CD आर्म से पे लगा हुआ, दीज फोर्सेज आर नॉट द कॉलिनियर, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, F1 मेरे पास होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, F1 की डायरेक्शन ये है, तो ये मेरे पास, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन मेरे पास है, ये हम क्या लेंगे, OM ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM प्लस दूसरा ले लेते हैं F2 टॉर्क ले लेते हैं, F2 फोर्सेज ले लेते हैं, F2 फोर्स के लिए मेरे पास जो डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, तो फ्रॉम O से हमारे पास O द पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, ON हम ले लेते हैं, दिस इज O इंटू N, तो ये मेरे पास है, तो फ्रॉम द राइट ट्रायंगल अगर साइन थीटा के कोई भी दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल करूंगा, तो वी हैव द साइन थीटा बराबर फ्रॉम दिस ट्रायंगल, साइन थीटा बराबर हो गया OM डिवाइडेड बाय OA, तो ये मेरे पास OA है, OA का मतलब है ये जो लेंथ मेरे पास अर्लियर केस में क्या था, ये जो लंबाई थी मेरे पास A है, तो ये आधा हो गया, हाफ A/2, दिस इज A/2 एंड दिस इज ऑल्सो A/2, तो ये मेरे पास हो गया फाइनली यहाँ से OM इज इक्वल टू A/2, सो देयरफॉर OM मेरे पास आ जाता है, OM हैज द वैल्यू A/2 इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे हम रख देते हैं इस वैल्यू को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा F1 A/2 sin theta is the value of this ones and similarly F2, so मेरे पास F2 भी क्या हो जाएगा, F2 is also the same value and here F1 और F2 की जो वैल्यू मेरे पास IBB आता है, so here F1 और F2 has the value same one, so तो here F1 is equal to F2 is equal to IBB, तो ये मेरे पास वैल्यू विच आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेट, सो नाउ वी आर सिमिलरली इस ट्रायंगल से ट्रायंगल्स OND, तो ये मेरे पास है फ्रॉम द ट्रायंगल्स OND, तो यहाँ से अगर आपको क्या निकालनी है, तो ये जो एंगल मेरे पास हो जाएगा, दिस एंगल विल बी, ये जो एंगल होगा यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा मेरे पास, इट विल बी थीटा, तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल इफ आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालेंगे तो मेरे पास साइन थीटा बराबर हो जाता है ON अपॉन OD एंड हियर ON इज रिक्वायर्ड, से मेरे पास ON की जरूरत है, एंड OD की जो वैल्यू मेरे पास हो जाती है A/2 मेरे पास हो जाता है, A डिवाइडेड बाई A/2, तो फ्रॉम हियर ON इज इक्वल टू हो गया A/2 साइन थीटा, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो मेरे पास आ जाता है A/2 साइन थीटा, तो ये आ जाता है सिंस F1 और F2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये मेरे पास है IBB ब्रैकेट के अंदर क्या था A/2 साइन थीटा, एंड सिमिलरली F2 इज I करंट एंड B A/2 साइन थीटा, तो ये वैल्यू आप सिंप्लीफाइड करेंगे, बोथ आर इक्वल, तो क्या आ जाता है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ IBB
इंटू ए बाई टू इंटू साइन थीटा, ये मेरे पास हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे तो वी हैव द वैल्यू फाइनली ए आई ए स्मॉल बी एंड बी इन साइन थीटा। तो ये मेरे पास आ जाता है ए एंड बी। ए एंड बी को हम क्या कहेंगे, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ए रेक्टेंगुलर लूप, कैपिटल ए से हम रख देंगे कैपिटल ए इंटू बी। तो ये मेरे पास हो गया फाइनल वैल्यू, दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर लूप, जो हल्का सा क्या है मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाता है। नाउ इन क्रॉस प्रोडक्ट पे ये मेरे पास इट विल बी तो ये मेरे पास टॉर्क हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क एंड वी प्लेस एम की जगह आई इंटू रख देंगे, एम इज द डायपोल मोमेंट, ये मेरे पास है डायपोल मोमेंट। सो नाउ इट बिकम्स आई इज एम yes, this is the value m into b into sine theta, this is the magnitude of the torque. In the vector format we have m cross b, तो ये मेरे पास होगा वेक्टर फॉर्मेट में m क्रॉस b। सो नाउ दिस इज द केस ऑफ दिस वन, we have calculated the torques when the plane of the loop makes some angles with the direction of the magnetic fields। तो हल्का सा हमने क्या कर दिया, इसको टर्न कर दिया था हल्का सा, तो वी हैव टर्निंग दिस, तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, इफ आई लुक फ्रॉम द एडी साइड से देखूंगा तो इट विल टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस केस में मेरे पास टॉर्क विल बी m क्रॉस b। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव हियर, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा। सो नाउ स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क का जो मेरे पास फॉर्मूला जस्ट मेरे पास अभी आया था, m क्रॉस b एंड इन मैग्नीट्यूड टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। सो ऑब्वियस है जब स्टेबल होता है चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेरे पास टॉर्क शुड बी जीरो, टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। सो हियर टोटल फोर्स तो यहाँ पे हमारे पास जीरो है, ठीक है, टोटल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑल फोर्सेज आर एंटी पैरेलल, फोर्सेज लगे भी तो एंटी पैरेलल, दे विल कैंसिल आउट। तो यहाँ पे फॉर द इक्विलिब्रियम के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, टॉर्क शुड बी जीरो होना चाहिए। सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारे पास कॉइल का स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सपोज हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड पे अगर मेरे पास सपोज ये वाली जो पोजीशन, लेट अस सपोज इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इस पोजीशन से अगर मैं क्या करूं, इस पोजीशन से अगर सपोज दिस इज अवर इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इस पोजीशन थोड़ा सा अगर मैं इसको टर्न करूंगा तो क्या वापस से पहले वाली पोजीशन पर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर आ जाएगी। तो इट मींस दैट व्हेन यू, अगर ये सपोज लाइक इक्विलिब्रियम पोजीशन, इफ यू टर्न दिस, मैंने टर्न कर दिया छोड़ दिया तो वापस से इस पर टॉर्क क्रिएट होगा, पहले वाली पोजीशन पे ले आएगा। तो ये वाली पोजीशन हमारे पास हो जाती है व्हेन m और b आर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मेरे पास क्या आ जाता है m, जब m क्या होगा मेरे पास, m इज पैरेलल टू when b और m is parallel to, ठीक है, b के जब क्या होता है m डायपोल मोमेंट पैरेलल होता है, इसका मतलब है कि when थीटा इक्वल टू जीरो, when थीटा इक्वल टू जीरो तो क्या मेरे पास आ जाता है, टॉर्क विल बी जीरो। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की हो जाएगी। सो m और b शुड बी द पैरेलल वन, इट मींस दैट जब मेरे पास क्या है कि इसका जो प्लेन ऑफ द लूप, जब प्लेन ऑफ द लूप मेरे पास इसका प्लेन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल है, उस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास टॉर्क मेरे पास जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। सो इसके लिए क्या है कि मेरे पास अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर इसको नॉर्मल में ऐसे रख दूंगा, ठीक है, तो इसका ठीक है करंट गोइंग, सपोज करंट गोइंग, इस पर करंट ऐसे जाना चाहिए,
इफ आई लुक फ्रॉम द साउथ पोल तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाए, राइटवर्ड हो जाएगी। इफ आई राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करता हूँ, राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करता हूँ तो इधर की तरफ हो जाएगा, एम की डायरेक्शन इधर की तरफ, बी की डायरेक्शन इधर की तरफ। तो नाउ इट विल बी क्या होगा, मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो जाएगी। नाउ इस पोजीशन से अगर मैं थोड़ा सा टर्न करूंगा देन छोड़ दूंगा तो टॉर्क वापस से ले आएगा। सो दिस इज द केस ऑफ द स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ अब हम आते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इस वाले केस में क्या होना चाहिए, बी एंड एम शुड बी एंटी पैरेलल। तो बी एंड एम क्या होना चाहिए, मेरे पास एंटी पैरेलल होना चाहिए। वेक्टर बी एंड एम, ठीक है, विल बी इन एंटी पैरेलल, विल बी एंटी पैरेलल। तो टॉर्क तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, एंटी पैरेलल का मतलब है थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास 180 हो जाएगा। तो यू नो साइन पाई कितना होगा, अगेन जीरो हो जाए, टॉर्क विल बी जीरो। तो किसी भी केस के लिए इक्विलिब्रियम या कोई भी इक्विलिब्रियम, वेदर इट इज स्टेबल, चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क शुड बी जीरो। तो इस वाले केस में क्या है मेरे पास, तो जब भी क्या है तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड से इसका जो प्लेन ऑफ द लूप है, प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप है, शुड बी नॉर्मल होना चाहिए। बट नॉर्मल होना चाहिए तो यहाँ पे जो डायरेक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड्स है तो डायपोल मोमेंट इधर की तरफ लेफ्टवर्ड्स होना चाहिए, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके लिए अगर यहाँ से देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो राइट हैंड रूल से मेरे पास डायपोल मोमेंट, अगर करंट गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स, माय थंब इज रिप्रेजेंटिंग द डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाता है। तो डायपोल मोमेंट मेरे पास लेफ्टवर्ड हो जाएगा, बी राइटवर्ड हो जाएगा। इस पोजीशन से अगर मैं क्या करता हूँ, सपोज इफ आई रोटेट, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसमें नेट फोर्स एंड टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो ये वापस से, इफ आई रोटेट दिस वन, चाहे ऐसे रोटेट कराओ या ऐसे रोटेट कराओ, वापस से नॉर्मल की पोजीशन में नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इफ आई रोटेट दिस वन, उसी डायरेक्शन में रोटेशन कर जाएगा, उसी डायरेक्शन रोटेशन करके स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में मेरे पास हो जाएगा, दीज आर द टू केसेस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फॉर board examinations. So be careful to understand the concept of torque and Lorentz force and all about the thing I have explained in this derivations.